Hi guys. So the last few months have been really challenging and frustrating for all the CLAT aspirants, and particularly this last week, after which NLAT 2020 was announced by NLSIU Bangalore, which is most probably happening on 12th September now, unless there is a court stay on it. So it is happening, and there are guidelines which is released by NLSIU Bangalore on an everyday basis. Okay. So today I'm going to tell you some proctoring guidelines. Proctoring guidelines का मतलब ये होता है, if you try to cheat during the test, तो आपके साथ क्या एक्शन लिए जा सकते हैं. Okay, so listen to these guidelines really properly till the end. And why am I saying this is because हो सकता है कि आप चीटिंग ना करो एग्जाम में, हो सकता है there is no malpractices attempted by you per se, बट कुछ ऐसी नेग्लिजेंस हो सकती है हमारे पार्ट पे, या कुछ ऐसी केयरलेसनेस हो सकती है जो शायद हमें डिस्क्वालीफाई कर दे इस एग्जाम से. ओके, so before moving on to the proctoring guidelines, I'm going to tell you something that I came across which I found very arbitrary with respect to this exam. That is, the exam is being conducted in 3 batches और 3 shifts कह सकते हैं हम इसको. और 3 shifts में हो रहे हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन पेपर भी सबका डिफरेंट होगा, बिकॉज इट विल हैपन इन डिफरेंट टाइम्स. द प्रॉब्लम इज कि अलग अलग क्वेश्चन पेपर होगा तो उसका डिफिकल्टी लेवल भी अलग होगा, ऑब्वियसली, राइट. अब डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होगा तो हो सकता है कि मुझे एक इजी क्वेश्चन मिल जाए या क्वेश्चन पेपर मिल जाए और किसी और को difficult question paper मिल जाए for that matter. Now the thing is, how do you normalize that? How do you keep everyone on the same pedestal? So NLSIU Bangalore has introduced something called a normalization process. इसमें ये लोग क्या करेंगे, some sort of average marks we can say will be counted from every test. ठीक है, so don't be happy कि अगर आपके 80 में से 70 marks आ गए और आपके friend के या किसी और के 65 marks ही आते हैं, so you may qualify. That may not be the case because they will mark everybody on the basis of difficulty of questions that they got. अब इसमें प्रॉब्लम ये है, why is it so arbitrary, is because कुछ चीज मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकती है जो किसी और के लिए इजी होंगी, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, मेरे लिए कुछ इजी होगा वो किसी और के लिए डिफिकल्ट हो सकता है. नाउ द प्रॉब्लम इज कि उसको मार्क कैसे करोगे, हाउ विल यू नॉर्मलाइज इट, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन गिव कि पहला जो पेपर था दैट इज 100 में से 90 डिफिकल्ट, the other paper is 100 में से 92 difficult. That cannot be done with the question paper, right? So I don't know how they're going to do it, and it is very arbitrary here. Anyway, अब arbitrary है, we can't do much about it, but there are certain proctoring guidelines that they've released on 9th September. So make sure that you understand these guidelines and go till the end, because obviously these proctoring guidelines will help you do the exam in a proper manner without getting disqualified. So the first part of the guideline says about impersonation. Okay, impersonation means कि आपकी जगह अगर कोई और एग्जाम दे दे तो, so impersonation अगर होता है then your malpractice will be recorded and you do not allow the impersonator, basically जो इंसान दूसरा एग्जाम देगा, the proctor of the NLSIU Bangalore जो एग्जाम का है NLAT 2020 का, that will not allow you to start the exam. Okay, और impersonator PWD कैटेगरी के जो केसेस है उसमें there will be certain scribes जो कि पहले से रजिस्टर्ड होंगे NLSIU बैंगलोर के साथ, सिर्फ वही अलाउड होंगे. सेकंड पॉइंट इज इनअप्रोप्रिएट सराउंडिंग्स एट द टेस्ट और एक्सटर्नल हेल्प सॉलिसिटेड. इसका मतलब आप किसी से हेल्प ले रहे हो जो आपके आसपास बैठा है या आगे पीछे आपके बैठा है. अगर ऐसा होता है और प्रॉक्टर्स को पता चलता है, so they will a message that will be displayed on your screen, उस पर लिखा होगा प्लीज स्वाइप द कैमरा इन अ सर्कल अराउंड द प्लेस यू आर टेकिंग द असेसमेंट. तो बेसिकली इस मैसेज के बाद आपको 360 डिग्री व्यू दिखाना पड़ेगा, बेसिकली पूरा रूम दिखाना पड़ेगा, और उसमें अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड डिवाइस दिखता है प्रॉक्टर को, then he or she may disqualify you from the exam. So make sure that you do not do this. इसके अलावा अगर कोई फोन या टैबलेट मान लो आपसे गिर जाता है उस टाइम पे, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो. सो मेक श्योर दैट जितनी आपको जरूरत है वही डिवाइस आपके सामने हो और कोई एक्स्ट्रा डिवाइस ना हो. और वंस आपको एक बार प्रॉक्टर बोलता है कि आप 360 डिग्री व्यू दिखाओ, यू विल बी गिवन 45 सेकंड्स फॉर दैट. अगर उस टाइम में आप नहीं कर पाते तो 10 सेकंड्स ज्यादा मिल सकते हैं, बट दैट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉक्टर. सो मेक श्योर आप 45 सेकंड्स में वो दिखा दो. ठीक है. अदर पॉइंट इज व्हेन यू आर टॉकिंग, स्पीकिंग और मेकिंग जेस्चर्स, बेसिकली आसपास कोई अगर आपको बैठा है और उसका आप खुद बात कर रहे हो, तो इस केस में 2 वार्निंग्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट. 2 वार्निंग्स में भी अगर वो नहीं मानता है, देन द प्रॉक्टर विल इन्फॉर्म द सुपर प्रॉक्टर. ठीक है, यहाँ पे प्रॉक्टर और सुपर प्रॉक्टर इन टर्म में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. दैट इज NLSIU बैंगलोर हियर, इतना मान सकते हैं हम. सो सुपर प्रॉक्टर रिकमेंड करेगा कैंडिडेट से या तो क्लैरिफिकेशन मांगो इस केस में, या फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दो. Now the fourth point here where somebody can try cheating by shifting tabs. ठीक है, आप एक टैब पे एग्जाम दे रहे हो, आप बहुत सारी टैब्स खोल लो और उसमें आप सर्च कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन. दैट इज नॉट अलाउड. और अगर आपने 5 बार ऐसा अटेम्प्ट किया, बेसिकली इसमें पॉपअप भी इंक्लूडेड है, अगर 5 बार ऐसा हुआ
तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, एंड ऑब्वियसली पहले दूसरी बार में आपको वार्निंग इशू होगी, लेकिन 5 बार के बाद यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. नाउ द थिंग इज, इफ योर फिफ्थ पॉइंट इज, इफ योर फेस इज नॉट डिटेक्टेड. ओके, आपका फेस डिटेक्ट नहीं होता तो एक वार्निंग मिलेगी विद इन 45 सेकेंड. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका फेस डिटेक्ट हो, और उसके बाद अगर आप नहीं कर पाते तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द एग्जाम. मल्टीपल पर्सन डिटेक्टेड इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ बैठ गए एग्जाम देने, विच इज नॉट अलाउड, सो उस पर भी एक वार्निंग मिलेगी. और अगर आप वो पर्सन इमीडिएटली वहां से जाता नहीं है, इन दैट केस your exam will be disqualified and that candidate will be disqualified. However, in case of PWD candidates, basically persons with disability, तो उनके लिए scribes होंगे जो कि पहले से registered होंगे. 7th पॉइंट यहां पर ये है, if there is a foreign device observed. ठीक है, इसका मतलब कोई मोबाइल, कैमरा, टैबलेट, कैलकुलेटर, इसके अलावा कुछ भी है, एक वार्निंग दी जाएगी इसके लिए. अगर ये फिर से आप करते हो तो फिर यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द एग्जाम. अब ये जो 8th पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू आर वेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ एन ईयरफोन, हेडफोन और ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस, इस केस में आपको एक वार्निंग दी जाएगी. ठीक है, हाउएवर देयर कुड बी यूजेज ऑफ ब्लूटूथ और हेडफोन और ईयरफोन्स अगर आप एक तरह से एक्सटर्नल माइक्रोफोन बनाना चाहते हो अपने कैमरा से. ठीक है, बेसिकली आपके ईयर में अटैच नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ माइक्रोफोन का काम करे, इतना ही अटैच होना चाहिए. सो बेसिकली उस केस में इट विल बी अलाउड. अदर देन दैट यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. एक और पॉइंट हो सकता है जहां पे आप मल्टीपल डिवाइस से लॉग इन कर लो. ठीक है, सो यू माइट हैव 2 लैपटॉप, 3 लैपटॉप, सब उनसे लॉग इन कर लो. सो द प्रॉक्टर विल ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस. और अगर उनको लगता है कि आपने मल्टीपल डिवाइस से लॉग इन कर रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका फेस तो एक ही डिवाइस में दिख सकता है क्लियरली और आईज कैन बी सीन ओनली इन वन ऑफ दोस डिवाइसेस, तो फिर प्रॉक्टर विल ट्राई एंड बेसिकली आस्क यू कि इन डिवाइसेस को बंद करो. और अगर आप नहीं मानते हो डिवाइस को बंद करने के लिए, देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. इसके अलावा भी प्रॉक्टर में डिसाइड दैट देयर कुड बी अदर डिस्क्वालिफिकेशन जो कि इस लिस्ट में नहीं दे रखे हैं. दैट इज अपॉन देयर विम्स एंड फैंसीज, आई वुड से. सो दीज आर सर्टेन प्रॉक्टरिंग गाइडलाइंस. मेक श्योर कि आपके आसपास कोई भी नहीं है उस दिन घर में. आई वुड रिकमेंड कि जिस भी रूम में बैठ के आप एग्जाम दे रहे हो, गेट बंद कर देना. घर पे बोल देना कि 40 मिनट्स तक इस गेट के अंदर कोई भी एंटर नहीं करेगा, और मे बी मोर देन दैट फॉर ऑलमोस्ट एन आवर. और उसके अलावा मेक श्योर दैट देयर इज नथिंग अराउंड यू. ठीक है, कोई लैपटॉप नहीं, कोई टैबलेट नहीं, बिकॉज इट माइट गेट यू डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द एग्जाम. So make sure guys that you're well prepared for this exam. Do not panic, be as calm as you can. ठीक है, जिन भी circumstances में हो रहा है एग्जाम, ठीक है, हमें देना पड़ेगा ठीक से. मेक श्योर, और दिस इज नॉट द एंड, बिकॉज क्लैट अल्टीमेटली होगा. सो अगर ये एग्जाम अच्छा नहीं होता, नो नीड टू फील बैड अबाउट इट, बट मेक श्योर गिव योर 100% टू दिस एग्जाम. दिस इज nothing but a really good practice for CLAT 2020. Okay, make sure that you do it well. All the very best.